Today we are here with a new guest on our Anita's Talk Show. To introduce myself, that I am Anita Singh, a behavioral parenting coach, Anita's Talk Show, and here I keep on bringing many coaches, authors, and today is a health coach coming on our show today. Thank you, Anita, for inviting me on this special occasion for Women Health and Women's Day. They are so relating, and actually, this every day is Women Day, so we Right, are right. celebrating it on a special day. That is very good. And we are, as you are dealing with holistic health, so let's give a little Mhm. bit of introduction from my side, because you are going to give your expert in that for the audience. I'm just letting them know that what are we coming up to. Holistic health is an approach of wellness, what I understand with the words, that simultaneously addresses the physical as well as the mental, social, and spiritual health on the whole. And as women, mothers, ladies at the home, in a household, jobs, kids, and everything. Over to one. Yeah, you asked a wonderful question that what is holistic health? We have many answers. Everyone has his or her own perception about holistic. And you said it right that holistic means the overall growth, overall health, it including spiritual, mental, emotional, and physical, as well as social. Because when we are handling all the four pillars now inside us, we are able to handle it outside us. That is with environment, that is social also, and that is with nature also. So yes, holistic means a wonderful connection within you and outside you. Okay, very nice. So, with this holistic approach, on the Women's Special Day, what would you like to give a tip for the women folk who are watching and their partners and their families? Live a simple life. Do not complicate it because life is in simplicity. What we are doing now, we are complicating it. Being as a woman, uh, we are overburdening ourselves, right? And we are taking all the responsibilities, getting it, and some role we can delegate, but we want to do it by ourselves. In that case, we are overburdening us only. Do Yes. not overburden yourself. Just delegate the thing. Everyone is capable of doing their own things, and they Mhm, should be aware of those things. So, mhm. being as a mother, we have that responsibility to delegate the things to our kids so they can grow as a good future. They can at least do their own work. So make it simple. Very true, Do not very true. complicate it. यस दिस जैसे अभी मैं एक पेरेंटिंग कोच हूँ, तो मेरे पास जितने भी मदर्स हैं मेरी ट्राइब में, वो क्या है कि वो बहुत परेशान रहती हैं कि भाई मैम अभी आपकी क्लास कैसे अटेंड करें, हमें बच्चों को देखना है, अभी खाना बनाना है, उनके पास टाइम ही नहीं है। सो Right. अगर इस चीज का टाइम नहीं है, तो आप सोचो कि वो अपनी डाइट का कितना ख्याल रख रही होंगी। बिल्कुल भी राइट, नहीं। ये तो हम्म। अंडरस्टूड सी बात है। अभी आप एज़ अ होलिस्टिक कोच, आप हेल्थ कोच, तो आप कैसे उनको क्या सुझाव देंगी कि छोटे-छोटे काम करते वक़्त अपने आप को या अपने एक बैलेंस डाइट लेने के लिए उनको क्या करना चाहिए? अपनी फिज़िकल उस पे तो ध्यान देती ही नहीं है। उनको तो उनके हम्म। मन में माइंड पे रहता है फैमिली, हर राइट। हर ठीक टाइम पे अपने बच्चों को मिल जानी चाहिए, तो वो खुद को नेग्लेक्ट करती हैं। तो आप क्या सिलसिले में क्या बोलेंगी? कैसे ये उनको? आपने अनिता बहुत अच्छी बात कही। मेरी भी जो क्लाइंट्स हैं या मेरी भी मतलब ट्राइब की बात करते हैं, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है एक्चुअली वो, राइट, उनके पास राइट। यही एक्सक्यूज होता है कि मैम अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, अभी हुँ, मेरे हस्बैंड घर पे आ गए हैं, अभी मेरे बच्चे घर पे हैं। अ, तो मतलब हो सकता है ये उन लोगों को बुरी लगे, इस वक्त हो सकता है बुरी लगे, बट वो जब इस बात को समझेंगे कि डोंट मेक देम डिपेंडेंट। हम उनको हम उनको डिपेंडेंट बना रहे हैं, हम उनकी लाइफ खराब कर रहे हैं, हम अपनी भी कर रहे हैं, क्योंकि हुँ, हमने अपने ऊपर इतना भार ले लिया। आर वी एबल टू हैंडल इट? नो, बिकॉज बिल्कुल, टुडे एवरी वुमन इज इंडिपेंडेंट and राइट, she is doing housework, job work, and social work and family. So राइट। kindly allow everyone to live in their own space. And the best example मैं क्या दे सकती हूँ? Being a housewife, being a working woman,
कि क्या हम एक एम्प्टी वेसल से पानी या चाय पोर कर सकते हैं कप में? नहीं कर सकते। एवरीवन बिल्कुल। नोज़ दैट। सो हम जब हम उस वेसल की तरह हैं और हमारी जो फैमिली वो छोटे-छोटे कप हैं। तो जब करेक्ट। हम अपनी केयर नहीं करेंगे, हमारी जो डाइट है, हमारी जो मेंटल हेल्थ है, हमारी जो इमोशनल हेल्थ है, हमारी जो करेक्ट। फिजिकल हेल्थ है, वो अच्छी नहीं होगी, तो हाउ वी विल बी pour it in their cups. करेक्ट। वेरी will not वेरी। first of all take care of yourself. टिप की अगर आप बात करते हैं तो आपका मील जो है इट कैन बी सेम, बट अपना मील अपना ही रखिए। डोंट मेक योर सेल्फ गार्बेज बैग कि इसकी करेक्ट। प्लेट में छूटा, उसकी प्लेट में छूटा, उसकी प्लेट में छूटा, सब मेरे अंदर जाना चाहिए। वाई? करेक्ट। मेक योर करेक्ट। ओन प्लेट, उनके साथ बैठिए, आराम से बैठ के खाइए। ये तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, और ये इतनी क्रूशल है, क्योंकि एक्चुअली बाहर तो मुझे पता नहीं, बट इंडिया में ये चीज बहुत देखने को मिलती है कि हमेशा यस। मदर्स को ये रहता है कि कोई चीज वेस्ट ना हो जाए, खराब ना हो जाए। बच्चे वेस्ट कर रहे हैं, चलो हम भी खा लेते हैं, ये वेस्ट कर रहे हैं, चलो हम ही खा लेते हैं। एक ये भी एक माइंडसेट भी होता है। मेरी मदर ने किया, मेरी बड़ी बहन ने किया, मेरी बुआ ने किया, मेरी सास ने किया, तो मुझे भी करना है। नहीं, करेक्ट। 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 यही एवरीवन चीज। इज डूइंग, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। होलिस्टिक हेल्थ, अब इसके हुँ, बारे में हुँ। कुछ बता सकती हैं? बिकॉज हमने तो सुना है हेल्थ कोच और इस टाइप का, तो हमें आइडिया है, बट ये जो आप हुँ, हुँ। हार्मोनल होलिस्टिक हेल्थ कोच, ये कुछ डिफरेंट लग रहा है। कुछ आप हुँ, हुँ। बताएंगे कि क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल। हार्मोनल अगर हमें होलिस्टिक हेल्थ की हम बात कर चुके हैं। जी। हार्मोनल वी ऑल कैरी हार्मोन्स। हम ये करेक्ट। अपनी जब जब अपनी हायर एजुकेशन करते हैं 6th से 10th में तो हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स हैं। तो उसमें हम करेक्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ते हैं, है ना? तो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम होता है हार्मोन्स को रिलीज़ करना। राइट। अब वो हार्मोन्स क्या काम करते हैं? आप सबने जो हमारे व्यूअर्स हैं वो उन्होंने भी सुना होगा कि कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है मार्केट में। वो भी एक करेक्ट। हार्मोन है, क्योंकि वो करेक्ट। स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है? यस। गट की बात करते हैं तो एवरी एवरी जितना भी चक्र हैं हमारे शरीर के, चाहे वो माइंड का है, चाहे वो हमारे डाइजेशन का है, एवरी सिस्टम इज़ कंट्रोल्ड बाय दीज़ हार्मोन्स जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज़ करता है। बहुत टेक्निकल में नहीं जाऊँगी मैं। बहुत ही करेक्ट। लेमैन की अगर लैंग्वेज में मैं बात करूँ, तो हमारा स्ट्रेस, हमारा थायराइड, हमारा डायबिटीज़, इंसुलिन जो है और हमारा पिट्यूटरी, दीज़ आर द बेसिक कॉमन हार्मोन्स एंड वुमेन हेल्थ की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी आ जाते हैं, ओके। ठीक है? तो ये हार्मोन इसलिए है कि आज का जो हमारा लाइफ़स्टाइल है ना, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, वो सब हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट या इम्बैलेंस करती हैं। यदि हम वो चीज़ सही नहीं कर रहे हैं, तो वो इम्बैलेंस हो जाएँगी। अगर वो हम चीज़ सही कर रहे हैं और सही तो हम कोई भी नहीं कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू। बिल्कुल। ये जितना हम बेसिक लाइफ़ जी रहे हैं ना, वी आर डूइंग इट रॉन्ग। ओह। जागने से लेके सोने तक हम गलतियों पे गलतियाँ करते जाते, करते चले जाते हैं। सोने में भी गलती करते हैं, सोते भी गलत है, उठते भी गलत है। तो उसकी वज़ह से हमारा ये एंडोक्राइन ग्लैंड गलत हो जाता है। और अब उसपे देखो ना, हमने ये बात अपने बचपन से सुनी है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अब हम पेड़ शरीर में बबूल के बीज डाल रहे हैं तो आम तो नहीं मिलेंगे हमें, तकलीफ ही मिलेंगी। तो एब्सोल्युटली। उसकी वजह से हार्मोन इतने इम्बैलेंस हो गए हैं कि हमारे हार्मोन्स जब माइंड में गड़बड़ हो रहे हैं तो वो हमारे गट को भी खराब कर रहे हैं। हम सबने गट ब्रेन का रिलेशनशिप सुना है। और हम्म। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, उन्होंने देखा होगा हमें जब कहीं बाहर जाना होता है, हमें जाना है, हमें पैकिंग करनी है या हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो या तो हमें लूज़ मोशन लग जाता है या हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या हमें बहुत भूख लगती है। दिस इज़ ट्रू। द बेस्ट एग्जांपल कि हाउ आवर ब्रेन इज़ कंट्रोलिंग आवर गट। हाँ। So this is all related to hormones. राइट। Everything is happening in our body due to of these hormones. ये तो आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि आज भी, जैसे मैं आपके साथ बात करने के लिए स्टार्टिंग में मैं आपको पूछ रही थी, तो आप कह रहे थे कि आप खाना खा रहे हैं, हाँ 7 o'clock जी, यू आर हैविंग योर फूड। सो यस। आम लोग तो कोई खाता ही नहीं है 7 बजे। व्हाट डू हाँ, यू वही तो। हैव टू एक्सप्लेन टू द ऑडियंस व्हाट दे आर डूइंग देखो, रॉन्ग? हम प्रकृति से बने हैं। वी ऑल नो आयुर्वेद जो कहता है, जो होलिस्टिक चीज़ है ना, वो आयुर्वेद से आई है। हमें जो मिला है
इंग्लिश में हम इसे होलिस्टिक बोलते हैं, बट हमारे जो सिस्टम्स चले आ रहे हैं, हमारे जो वेदांत चले आ रहे हैं, वो कहते हैं कि इट्स आयुर्वेद। तो जो आयुर्वेद है ना, वो बात करता है सर्केडियन रिदम की। करेक्ट। सर्केडियन रिदम मतलब हमारी एक दिनचर्या होती है, जैसे कि सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है। क्या वो अपना टाइम छोड़ता है, उसको एंजॉय करने का मन कर रहा है, चलो आज मैं नहीं उठता हूँ, मैं थोड़ा लेट उठूंगा? नहीं, एग्जैक्टली exactly, हम भी उन्हीं एलिमेंट्स से बने हैं, वही 5 एलिमेंट्स हमारे अंदर है। ठीक है, सन भी है इन द फॉर्म ऑफ फायर, सन हमारे अंदर है, अर्थ हमारे अंदर है, वाटर हमारे अंदर है, स्पेस हमारे अंदर है, और एयर हमारे अंदर है। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं। अब क्या होता है कि हमारी जो फायर है ना, वो हमारी जठराग्नि बोलते हैं उसे, जिसको कि डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं। अच्छा। डाइजेस्टिव फायर इज कंट्रोल्ड बाय सन। अच्छा। ओके। सन जब राइज हो रहा है ना, इट इज क्लॉक कि अब आपका उठने का, आपकी जठराग्नि के उठने का समय हो गया है। और जब सन सेट हो रहा है, तो इट इज स्विचिंग ऑफ। अब आपकी फायर बंद हो गई है, आपका जो सिस्टम है, आपको जो कंट्रोल कर रहा है उस फायर को, वो बंद हो गया है, एंड यू आर स्टिल यूजिंग इट। क्या होगा? राइट। इट विल नॉट ऑपरेट। राइट। राइट। सो सो ये चीज है, बहुत डीप आपने बोली है। तो उसके साथ मेरा एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि आपको ये कैसे आइडिया मिला कि आप एक इस टाइप की कोच बने? इसके पीछे भी कहते हैं ना, इंसान ठोकर खा के सीखता है। आई विल टेल यू ए स्मॉल स्टोरी। आई वॉज सुपर एक्टिव, मतलब मैं एथलेटिक पर्सन थी बिफोर मैरिज, आफ्टर एंड आई राइट। वॉज वर्किंग वूमेन। तो बस काम काम काम, हमारा एक एम्बिशन होता है ना, जब हम वर्किंग वूमेन होते हैं, हम बच्चे भी संभाल रहे हैं, हम घर भी संभाल रहे हैं, हम करेक्ट। सबसे पहले किसको नेग्लेक्ट करते हैं? खुद को, अपने आप को। अपने आप को। वही वही गलती हुई कि मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर रही थी, लंच बाहर कर रही थी, डिनर का कोई टाइम ही नहीं था। ठीक है, तो एक, और मैं बहुत सारी, शुरू में तो बहुत अच्छा चल रहा था सब, 1 डेढ़ साल तक तो मुझे पता भी नहीं चला कि मैं सोई भी हूँ या नहीं सोई, क्योंकि खुद का बिजनेस था, तो इट वाज टेकिंग माय लॉट ऑफ टाइम। करेक्ट। बट धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं थकान महसूस कर रही हूँ, उठती थी तो मुझे थका थका लगता था, कि ओके। यार उठा नहीं जा रहा है, थोड़ी देर और सो जाऊं। हम्म। और हमेशा इंडाइजेशन रहना, कभी बर्प्स, कभी गैस, हम्म। कभी ब्लॉटिंग। आई एम करेक्ट। टेलिंग यू, दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग। ये बॉडी आपको बताने की कोशिश करती है दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग वे, आपको ध्यान देने की जरूरत है। सो व्हेन आई वेंट टू डॉक्टर, शी टोल्ड मी दैट आई हैव मल्टीपल cysts in my both the ovaries and I need to operate both of them. टर्निंग मैं पॉइंट। एक्चुअली टर्निंग पॉइंट थी। आप कॉन्शियस हो आई गई। आई हैव I have 2 kids and both of my kids are normal delivery, and I ओके। got scared with the name of surgery. ओ। So I just कि मैं उस दिन I cried a lot on that day. और मैंने डॉक्टर को एक ही बात बोली कि मुझे सर्जरी नहीं करानी है, आप मुझे जो बोलोगे मैं करूंगी, लेकिन मैं सर्जरी नहीं करूंगी। तो करेक्ट। उन्होंने, एलोपैथी में तो यही ऑप्शन है, एलोपैथी कैन ट्रीट सुपरफिशियली, इट कैन ओके। गिव यू इंस्टेंट रिलीफ, बट इट कैन नॉट हील यू। You should switch to Ayurveda. It can help you, Ayurveda and yoga. Then I healed myself. I was studying the Ayurveda and yoga and I was healing myself. It took me 11 months. And within first month, within 30 days, my doctor was so happy that my cyst started shrinking. So that gave me motivation. Ki, yes, I can do it. And I was diabetic also at that time. I got ओके। diabetic. It was knocking that, Anu, get up. It is the last warning to you. ओके, आपका सिस्ट क्योर हो गया? Yeah, yes, definitely. And my diabetes also got reversed. वाह। ग्रेट, Yes. ग्रेट, वेरी नाइस। सो अभी आप ऑडियंस को, अगर ऑडियंस इंटरेस्टेड है आपके से मिलने के लिए, आपसे सीखने के Mm-hmm. लिए, तो आप क्या, आपके पास चैनल्स हैं कि वो आपके पास आए? देखो, फेसबुक पे तो है ही, फेसबुक पे इवन मेरे प्रोफाइल पे कैलेंडली लिंक भी है, एंड इंस्टाग्राम पे भी सेम आयुर्वेदिक अनु के नाम से ही है। एवर इज वॉचिंग नाउ, हु विल वॉच दिस लेटर, देन दे कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम, बिकॉज आई नो दिस स्ट्रगल इज रियल। आपके पास कोई वर्कशॉप वगैरह कुछ है जिससे वो आपसे डायरेक्ट आ जाएं?
हाँ, उनकी 1-to-1 कॉल होती है और वर्कशॉप्स भी आ रही हैं मेरी। वर्कशॉप भी मैं इस पे अनाउंस भी करूँगी, मैं इवन आपको भी शेयर करूँगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच चुके कि जैसे लिवर डिटॉक्स वर्कशॉप चलती रहती है, हर हर मंथ चलती है वो। गट की है, किडनी की है, इनके डिटॉक्स चलते रहते हैं। तो आई विल ठीक। डेफिनिटली शेयर इट विद द पीपल। सो कितने आपके पास अगर कोई आना चाहे पूरे प्रोग्राम के लिए, कितना समय लगता है उनको आपका प्रोग्राम कंप्लीट देखो करने? समय डिपेंड करता है कि उनकी सीवियरिटी क्या है। इसीलिए ठीक। मैंने वो कैलेंडली लिंक शेयर किया हुआ है कि आई कैन अंडरस्टैंड दैम राइट फिट फॉर ईच अदर और नॉट, बिकॉज वी नीड टू सी that that person is serious, or that person is at medium level, or that person is at the starting phase. So after meeting them I can tell them, but yes, I request them that at least give yourself 90 days, at least राइट। give yourself 90 days, थैंक यू। because फर्स्ट मंथ में आप उनको एनालाइज करते हैं या जो जो भी प्रॉब्लम है उसको देखते हैं, और सेकेंड मंथ में आप उनका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता होगा, है ना? फर्स्ट एंड सेकेंड वीक से ही शुरू हो जाता है हीलिंग प्रोसेस। फर्स्ट वीक में मैं सिर्फ उनकी, जैसे बात हुई ना, दिनचर्या को, उनके डेली रूटीन को, उनके लाइफस्टाइल को समझने की कोशिश करती हूँ। बट एनालाइज। अनीता, व्हाई इट इज टेकिंग सो मच टाइम? कोई बंदा उठी 8 बजे रहा है या 11 बजे रहा है, मैं उसको 5 बजे नहीं उठा सकती एकदम से। इट विल करेक्ट। बी एंड शॉक टू बॉडी। तो वी जस्ट इट टेक्स ट्राई टाइम। टू शिफ्ट स्मॉल 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 सिंपल स्टेप्स की उनको पता भी ना चले, बिकॉज एवरी वन इज बिजी इन दियर लाइफ। अभी मैं एक वर्किंग वुमेन को कहूँ कि नहीं आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ यही करो, वो नहीं करेगी। तो मुझे उनकी लाइफस्टाइल के साथ भी एडजस्ट करना पड़ता है, तो सो इट इज टेकिंग टाइम। तो फिर आप उनको डाइट चार्ट भी देती होंगी? आई डोंट से डाइट चार्ट, बिकॉज डाइट वर्ड ही थोड़ा ऐसा है कि आदमी को डर लगता है कि मुझे डाइट करनी पड़ेगी। आई गिव देम न्यूट्रिशनल प्लान्स। उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को देखती हूँ, उनको मैं कैसे नेचुरली फूड से हील करा सकती हूँ, या उनकी कौन सी स्पाइसेस को ऐड कर सकती हूँ, जैसे कि B12, विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत नॉर्मल है वुमेन में। करेक्ट। तो और आयरन की डेफिशिएंसी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि फूड के कुकिंग मेथड को चेंज करके मैं कैसे उनको फूड से ही हील कर सकती हूँ। राइट। आई डोंट गो फॉर मेडिसिन। राइट। मेरे पास प्रोग्राम है कि जो लोग शॉर्ट कोर्स लेना चाहते हैं या आपके साथ 90 डेज आना चाहते हैं, ऐसा कुछ प्रोविजन है? डेफिनेटली। देखो, शॉर्ट कोर्सेज के लिए वर्कशॉप्स हैं। स्मॉलेस्ट शॉर्ट कोर्स है वो 5 डेज का होता है, और योगा क्लासेस भी होती हैं। तो जिनको सिर्फ योगा करना है, दे कैन ज्वाइन योगा ऑल्सो। कुछ ऐसी लेडीज भी होती है कि नहीं मैम मुझे तो सिर्फ योगा करना है, इवेंचुअली दे शिफ्ट टू 90 डेज प्रोग्राम, बिकॉज 1 घंटे में आप बाकी 23 घंटों को नहीं बदल सकते। और मुझे तो 23 आवर्स का साइकिल चेंज करना होता है। जब हम सर्केडियन रिदम या लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो वी नीड टू चेंज ऑल दोस 23 आवर्स, राइट? बिकॉज जब भी हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, आपके वेट फ्लक्चुएशंस होते हैं, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको इन्फ्लेमेशंस होते हैं, आपको इन्फेक्शंस होते हैं, आपको एंजाइटी होती है। बहुत स्मॉल सिम्टम्स हैं, बट दे ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ हार्मोनल इम्बेलेंस। Migraines attacks, they are very common, very very common, and all women have these, and these are because of those hormonal imbalances. वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने तो आज ही जाकर लेडीज के बारे में सब कुछ बताया, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो भी मेरी ऑडियंस आज देख रही हैं, तो उनको मुझे लगता है कि काफी हेल्प मिली होगी। और तो ऑडियंस, आई वुड लाइक टू अनाउंस दैट अगर आपको डाउट है तो आप जब आप फेसबुक पे जाएंगे तो फेसबुक पे आपको लिंक्स नजर आ जाएंगी, और अगर आप उनसे मिलना चाहती हैं तो कैलेंडरी लिंक भी है, उस पे आप उनके Mm. पास जाके 1-to-1 बात कर सकती हैं, और अपने डाइट प्लान्स चेंज कर सकती हैं, अपने बच्चों के बारे में भी पूछ सकती हैं, और आपका जो होलिस्टिक, that is why she calls herself as a hormonal holistic coach, because she will not only create about your diet, but it will be your whole life will be transformed if your health will be right. इसके साथ हम आशा करते हैं कि अनु जी को हम दोबारा से ले आएं, भी हमारे ऑडियंस चाहेंगी और हमें लिखेंगी कि हम एक बार और चाहते हैं अनु जी को हमारे पास लाना, तो हम जरूर उनको कोशिश करेंगे कि वो अपना कीमती वक्त में से थोड़ा सा समय हमारे लिए भी निकालें। खुश हो जाएंगे सारे हमारे ऑडियंस कि आप दोबारा आई हैं और उनके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने सारे प्रश्न अपने पास रखें और हमें बताएं कि इनका ये जो हमारा 1-to-1 टॉक सेशन था, कैसा लगा आपको?
तो अनु जी, आपने अपना कीमती वक्त Thank you. हमारे साथ दिया. Thank you so much and God Thank you. bless. Thank you.